Okay, good morning, ladies and gentlemen. I hope you are all doing fine. So, first of all, I would like to introduce myself. I am Advocate Lalit Yadav and I am NDA 134th batch selected. So, ladies and gentlemen, today I am going to talk about the golden opportunity which is waiting at your doorstep at the 10 plus 2 level. So, the best career opportunity which is available to you at 10 plus 2 level, that is NDA. So, ladies and gentlemen, today I am going to talk about NDA, what sort of life you get NDA, and why is it wise to prepare for NDA than any other competitive exam. And to the course of your preparation, if you have made up your mind, definitely if you have made up your mind for preparing, then what sort of problems you will face during the course of your preparation and how to overcome those preparations. तो यार तैयारी सब करते हैं लेकिन वाइजली कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा. How to wisely prepare for NDA. So first of all, I will give you some introduction about NDA. What is NDA? Okay. NDA was set up in 1954. It was set up in 1954 and it was the first tri-service academy of the world. So my handwriting is a little out of order, so please cope up with that, right? So it was the first tri-service academy of the world, and in due course of time, it has is proven itself to be one of the finest academies for defense training all around the world. It is the reputation of producing the best officers in the entire world. It is known for producing best officers, right? So basically, the course of duration at NDA is 3 years. That means after completing your 10 plus 2, you will get into NDA, and then 3 years at NDA and plus 1 year of additional training. Additional training at the respective academy. By respective academy, I means as they are taking cadets for all the three services, that is Army, Navy, and Air Force. So this 1 year of additional training is at IMA. It is Indian Military Academy, which is situated at Dehradun. Then AFA, Air Force Academy, Hyderabad. Then NA, Naval Academy, which is in Kerala. Right? So 3 years at NDA, then 1 year of additional training at the respective academies. If you choose your service as Army, then at IMA. If you choose AFA as your choice, Air Force as your choice of service, तो आपको हैदराबाद में ट्रेनिंग होगी आपकी. अगर आप नेवी चूज करते हैं, then your training will be conducted in केरला. तो आपकी ट्रेनिंग होगी केरला में. So basically NDA की स्थापना 1954 में हुई थी और ये दुनिया की पहली ऐसी एकेडमी है जो तीनों सर्विसेज के लिए बच्चों को तैयार करती है. आर्म्ड से बच्चों के लिए कैडेट्स को तैयार करती है, राइट? तो 3 इयर्स 3 साल की ट्रेनिंग होती है एनडीए में और 1 साल की एडिशनल ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की आईएमए में, एयरफोर्स वालों की एएफए में और नेवी वालों की एनए में. सो दिस इज एनडीए 3 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग. बट करवाते क्या हैं एनडीए में? In these 3 years, trust me, they are going to change your life. These 3 years will be the best 3 years of your life. Here, the beauty of this organization, all the 3 organizations, I would say, the beauty of defense is that here, they not only trains you, but they also educate you and pay handsomely during the course of training only. So this is the beauty of this organization. The defense is the only organization which not only trains you
educate you and pay you handsomely during the course of training itself. तो ना ही आपको ट्रेन करते हैं, वहीं पे एजुकेट भी करेंगे और आपको हैंडसमली पे भी करेंगे. सो या ट्रेनिंग इज अ पार्ट, बट हाउ डू दे एजुकेट यू? क्योंकि आप 10+2 करके जाएंगे, यू आर ओनली इंटरमीडिएट पास आउट, सो दे विल graduate you at NDA. The degrees of NDA cadets are provided by Jawaharlal Nehru University and Delhi University, right? So basically you can choose whichever course you want depending on your choice. You can do BA, BSc, but for naval cadets BTech is necessary. So you can only do BTech if you choose Navy as your choice of service. अगर आप Navy choose करेंगे तो सिर्फ BTech कर सकते हैं. एंड आई गेस हाँ, AFA वालों को जो आई मीन एयरफोर्स चूज करते हैं उनको BSc मैंडेटरी होती है. BSc BTech वट एवर दे वांट टू डू. BA नहीं कर सकते हैं, बट आर्मी दे आर फ्री टू डू वट एवर दे वांट. BSc BA BTech वट एवर दे वांट, जो भी करना चाहते हैं. सो 3 years यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाती है साथ साथ में आपकी ट्रेनिंग के साथ. और 4th year फाइनल ट्रेनिंग होती है IMA देहरादून या फिर AFA हैदराबाद और NA वट एवर यू चूज. जो नेवी वाले बच्चे होते हैं उनका जो 4th year NA में होता है, उसके साथ साथ उनकी BTech भी वहीं पे करवाते हैं. 4th year की जो BTech होती है, राइट? सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम. सो नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट व्हाई डिफेंस इज द बेस्ट चॉइस ऑफ सर्विस. कि आप ND की तैयारी करें क्यों यार? कोई भी बंदा सोचेगा यार देयर हैज़ टू बी सम इंस्पिरेशन, कि कुछ तो फायदा होगा यार, मैं ये कोई चीज़ कर रहा हूँ तो इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है. तो ऐसा क्या है ND में कि मैं इसकी तैयारी करूँ? सो एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ यू कांट इवन इमेजिन ऑफ इन योर सिविल लाइफ, राइट? इफ़ यू यार आई वोंट से मच, बट आपको कभी मौका मिले तो कैंट एरिया में जाके देखो. सबसे चमचमाता वो एरिया होता है कैंट एरिया. मतलब सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. मतलब दे हैव देयर, मतलब इट इज़ लाइक अ ऑन सिटी. जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में पूरा प्लान था, इसी तरीके से उन्होंने सब कुछ अपना उसी छोटे सी एरिया के अंदर सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान होता है. ब्यूटीफाइड प्लेसेस होते हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी मिलती है. और आप तो वैसे भी एज ऑफिसर्स जाओगे इफ़ यू जॉइन NDA. सो देयर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर लाइफ. तो यहाँ पे जैसे आपको टेंशन होती है सिविल लाइफ में, यार सेविंग्स करनी है, फिर ये करना है, आप 20 साल का सोच के आगे का चलते हो. बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करना है, इसकी चीज़ के लिए करना है. लेकिन अगर आप एक बार आर्मी में चले गए तो आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि पहली बात ये आपको हैंडसमली पे करते हैं. दूसरी बात सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे आर्मी में. एकोमोडेशन फ्री, फूड फ्री, उसके लिए ऑफिसर्स मैस होते हैं. एंड ट्रस्ट मी, ऑफिसर्स मैस का खाना किसी 5-star होटल से कम नहीं होता है. द क्वालिटी ऑफ फूड, द क्वालिटी ऑफ क्लोथिंग, द क्वालिटी ऑफ एकोमोडेशन. यार एक एकड़ में इनके बंगलो होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके. तो आपको मौका मिले तो कभी जाके देखिए. मतलब डिफरेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ है यार. मतलब जो जैसी ज़िंदगी आप आर्मी में फ्री ऑफ कॉस्ट झेलोगे, वैसी ज़िंदगी आप सिविल लाइफ में करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं जी सकते हो. दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड आई एम नॉट लाइंग. जब मैं तैयारी करता था डिफेंस की, मेरे साथ बच्चे ऐसे भी थे जो SSB देने आते थे, देखा था मैंने, जो IITians थे, बढ़िया कंपनी में उनकी प्लेसमेंट हो रखी थी, लेकिन फिर भी SSB देने आते थे बिकॉज समहाउ दे वांट टू गेट इनटू डिफेंस. Well, when I was also very curious at that time and I used to ask them, यार इतनी बढ़िया पैसे वाली नौकरी छोड़ के तुम यहाँ आ रहे हो, तुम बेवकूफ़ हो? तो वो बताते थे यार बेशक, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दे आर प्रोवाइडिंग in these forms also we are not getting this quality of life. तो ये जो quality of life, मतलब क्या क्या benefits मैं गिनवाऊँ आपके. मिलिट्री हॉस्पिटल फैसिलिटी, CSD फैसिलिटीज़, राशंस आधे रेट्स पे मिलते हैं. सब कुछ जो आप डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं CSD कैंटीन्स में बिल्कुल हाफ रेट्स पे मिलते हैं. यहाँ पे जो चीज़ आप 100 रुपये की लेते हो CSD में 50 रुपये मिलती है. देखिए ये फैसिलिटी है. और पोस्ट रिटायरमेंट को 60-70 हज़ार तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको पेंशन मिलती है. यहाँ पे सिविल में आपको उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी डिफेंस ऑफिसर्स की पेंशन होती है. फ्री मेंबरशिप ऑफ क्लब्स. और काम क्या होता है, अगर आप देखने जाओगे तो कैंट एरिया में आपको गोल्फ कोर्स हर जगह मिलेगा. एंड यू विल फाइंड एंटायर डे ऑफिसर्स आर प्लेइंग गोल्फ देयर. ये काम करते हैं. ये नहीं कह रहे कि आर्मी ऑफिसर कुछ काम नहीं करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ एंजॉयमेंट बहुत है. मतलब
इवन इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग के साथ साथ आपको बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, वट एवर यू कांट इवन ड्रीम ऑफ। जिन चीज़ों के लिए आप लाखों रुपए खर्च यहाँ पे करोगे, वहाँ पे इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, वट एवर यू डिज़ायर फॉर, देर आर लॉट अराउंड 40 adventurous activities. You can choose activities of your choice in the academy. So this is the quality of life. And trust me, अगर आप 10-15 साल आर्मी में करते हो, अगर you know if you join a short service commission officer, तो जो short service commission officers होते हैं वो NDA gives you permanent commission, लेकिन जो short service commission होते हैं at graduation level, वो उनकी 15 years का duration होता है, मतलब extendable up to 15 years, initially 10 years but can be extended up to 15 years. उन्हें भी यहाँ पे आके 15 ईयर्स आर्मी में करते हैं, 10-15 ईयर्स, और यहाँ पे आके बहुत अच्छी कंपनीज में उनको प्लेसमेंट मिल जाती है, बिकॉज दे हैव अ रेपुटेशन, यार ये आर्मी ऑफिसर है तो इसकी, यार इस बंदे में कुछ दम होगा. सो दिस इज द रेपुटेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स इन सिविल लाइफ. सो ओके, दिस वाज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन दैट व्हाई यू शुड प्रिपेयर फॉर एनडीए. ट्रस्ट मी, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो नहीं सकती 10+2 लाख. अभी क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार अभी बच्चे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर प्रिपेयर करेंगे, जिस भी एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, फॉर CDS के लिए जाएंगे हम, चीज़ों के लिए जाएंगे. लेकिन ट्रस्ट मी यार, यहाँ पे सिलेक्शन लेना सबसे आसान काम है. A ग्रेड ऑफिसर बनने का, गैजेटेड ऑफिसर बनने का सबसे आसान तरीका एनडीए है. अगर आप मतलब ऑनेस्टली only a few months if you prepare honestly for NDA, you will definitely crack the exam. And I will also provide you some lectures for SSB, and if you will follow that, I'm assuring you it will be very easy for you to crack even SSB, right? Because they are not demanding anything extra. They want average individuals जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नॉर्मल आदमी की तरह काम करते हैं. उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें वहाँ से आपसे रॉकेट नहीं बनवाने हैं, आपसे मिसाइल्स नहीं बनवाने हैं आपको. बट they are just checking that whether you have, they ask for certain qualities, whether you have those qualities or not. और एक बार आप अंदर चले गए तो भाई यार पूरी ज़िंदगी मौजा ही मौजा है, I'm telling you, right? So this was a little motivation that why you shall join NDA. So okay. So now the next question is कि what is the eligibility for NDA? कि eligibility क्या है? When I will be eligible for NDA? Eligibility. So the age limit is 16.5 to 19.5 years, right? 16.5 to 19.5 years, but 19.5 years at the time of joining the academy. जिस दिन आप academy join करोगे उस दिन आपकी उम्र 19.5 साल होनी चाहिए. So basically that means कि फॉर्म भरने के लिए आपकी एज अराउंड 19 के आसपास होनी चाहिए. उसके बाद आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं इंडिया. So this was the age limit, 16.5 to 19.5. So now the educational qualifications. एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज 10+2, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया यार, 10+2 लेवल पे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और कोई भी नहीं है. ये आपको मतलब 12वीं पास का बच्चा जिसे जिसने कोई दुनिया नहीं देखी है बाहर की, जिसे आउटर लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसको ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है एग्रो ऑफिसर बनने की, राइट? नो अदर ऑर्गेनाइजेशन विल टेक यू. मतलब इतना पैसा, इतनी फैसिलिटीज़ एक 10+2 वाले बंदे को कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं देगा जितना यहाँ पे आपको मिलेगा. सो इवन अब ये मत सोचिए कि यार इफ समवन इज सेइंग यार मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, यार एवरीवन हैज डिफरेंट प्रायोरिटीज. बट एक बार एग्जाम देके देखिए, एसएसबी देके देखिए, ट्रस्ट मी, एंड इवन गिविंग एसएसबी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. इट विल बी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू इफ even appearing in an SSB is one of the best experiences of life, right? So education qualification is 10+2, but for army you can be from any stream. Either you can be from humanities, you can be from non-medical,
and even you can be from medical also, right? Whichever stream. Yeah. But for Air Force and Navy, they take from only from science background, right? So humanities students can't apply for Air Force and Navy, they can only apply for Army. ठीक है, आप 10+2 में आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो आप सिर्फ आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो. इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो आप एयर फोर्स नेवी किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? ओके, सो दिस वाज द एलिजिबिलिटी. दो मेडिकल एलिजिबिलिटीज आल्सो देयर, डोंट केयर अबाउट देम मच, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, प्रिपेयर करो सबसे पहले. तो यार सेइंग कि यार इवन इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो प्रिपेयर करो यार. प्रिपेयर करने में क्या जा रहा है? और मान लो आप किसी और गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल इन सम एसएससी एग्जाम और एनी अदर एग्जाम, सो अगर आप यहाँ से इसके लिए प्रिपेयर भी करते हो तो यू आर मेकिंग अ बैकग्राउंड, मतलब आप अपना बेस तैयार कर रहे हो अभी से प्रिपरेशन करने के लिए. अगर आप 3 साल अभी तैयारी करके ग्रेजुएशन के बाद उस वहाँ जाओगे तो आप ये देखो आप कितनी भीड़ से बहुत आगे चले जाओगे अगर यहीं से आप तैयारी शुरू कर दोगे अपनी, राइट? सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एनी. Even if you are not interested, but still if you are in some other government jobs or anything, then it will be a level playing field for you. Not even level playing field, but क्या है, आप बहुत सारी भीड़ को काट के आगे चले जाओगे अगर यहीं से प्रिपरेशन शुरू कर दोगे 10+2 लेवल्स, राइट? ओके, now I will talk about the scheme of the exam, right? So UPSC conducts the exam. The exam is conducted by UPSC, Union Public Service Commission. We will not go into much what is UPSC and we don't have to do anything with that. But just know that ND exam is conducted by by a commission by the name UPSC, right? UPSC conduct करवाती है and twice a year. साल में 2 बार होता है NDA. ठीक है, तो आपको 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं साल. तो बेसिकली ये लगा लो 16.5 से 19.5 साल, तो 3 साल तो आप लगभग 6 चांस मिलेंगे. वैसे इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप 5 बार दे सकते हो, 6 बार दे सकते हो, टिल द टाइम आपकी एज लिमिट है कितनी बार दो, 8 बार दो, 10 बार दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल दो. लेकिन हाँ 6-7 अगर कोई 16.5 साल पे देना शुरू कर देता है तो उसको आराम से 6 अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, राइट? फॉर एनडीए. सो इट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर बाय यूपीएससी. सो व्हाट इज द procedure? First of all, written exam conducted by UPSC कंडक्ट करती है साल में 2 बार. आपने एग्जाम दिया, उसके लगभग 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाता है आपका. देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स बाय द यूपीएससी फिर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं रिटन एग्जाम में उनकी लिस्ट भेज देती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को. फिर आर्मी अपना उनका फिर एक अलग प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू. फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, 5 दिन चलता है ये. जो 5वें दिन रिकमेंड होता है एसएसबी में, फिर उनको वहीं रोक लेते हैं. देन इट इज फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन. मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको घर भेज देंगे. उसके बाद फाइनल ये फिर लिस्ट वापस, ये सारा दोनों प्रोसेस कंडक्ट करके आर्मी वापस यूपीएससी को लिस्ट भेज देती है. Then UPSC release a merit list, and if you are finally in the merit list, then congratulations, you are going to NDA, right? So this is the selection procedure: written exam, SSB interview, then it is followed by medical examination, then a final merit list, and if you are lucky enough to get into the merit list, then you are going to NDA. अगर इन सारी स्टेजेस को आप क्लियर कर लेते हो तो फाइनली आप सेलेक्ट हो जाओगे, राइट? So first of all, the very first step I will talk about. So सबसे पहला स्टेप पार करना है और वो क्या है? रिटन एग्जाम. So first of all, I will talk about written exam. So as you know, it is conducted by UPSC. So what is the scheme of the exam? Scheme of exam is basically a 900 marks exam, right? 900 marks exam. 2 papers are conducted. Paper 1 is mathematics.
mathematics, 2.5 hours duration, and the marks are 300 marks. Basically general studies paper, right? General studies paper, same duration, 2.5 hours, 600 marks. Out of this 600, 200 are dedicated to English and 400 to GS, you can say. Same thing, GK, GS, whatever you call it. And in GS you have general science, history, polity, geography, economics, current affairs, and then miscellaneous portion. So basically these are the same thing, current affairs or miscellaneous, you can say. In miscellaneous they ask about some organizations. If some organization in news, like NATO is in news, UN is in news, so they may ask questions from those organizations. When was the organization formed, क्या है, कि कौन कौन members हैं, मतलब ऐसे एक दो questions आ सकते हैं इसलिए से. So this is the syllabus. So in mathematics, questions are generally from 11th class and 12th class mathematics, some portion of 10th also, right? Like trigonometry they ask from 10th, and little more portion, but most of the questions are from 11th and 12th mathematics. In English, major portion is devoted to grammar. Grammar का सबसे ज़्यादा portion आता है इसमें. थोड़ा comprehension passages वगैरह होते हैं वो बहुत ही easy होते हैं tackle करने के लिए, तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको. So basic सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है grammar. कुछ questions vocab के भी होते हैं. Some questions are from vocab also, but major portion of the paper is devoted to grammar. Grammar का सबसे ज़्यादा portion होता है. Here in general science, basically science up to 10th class. जो daily life की science होती है वही पूछी जाती है. Applications जो होती हैं science की आपकी daily life में उससे related question पूछेंगे, right? जैसे for example कौन सी जो रेडियो for example हाँ जैसे रेनबो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इन सब चीज़ों से रिलेटेड. लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, और आपका जो एनिमल किंगडम होता है, प्लांट किंगडम होता है बायोलॉजी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं यहाँ पे. हिस्ट्री, जो जो ये पोर्शन आपका ह्यूमैनिटीज़ का, यहाँ से 11th-12th से क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा डीप जाती है यूपीएससी, बिकॉज दे फोकस ऑन जीएस, और जीएस का ये सबसे मेजर पोर्शन होता है आपका, ह्यूमैनिटीज़ का जो पोर्शन होता है, तो यहाँ पे वो काफ़ी डीप चले जाते हैं. तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा. 11th और 12th के क्वेश्चन होते हैं सारे सब्जेक्ट से. एंड करंट अफेयर्स के लिए मैं बता दूँ आपको, either you can take any magazine for current affairs की काफ़ी magazines आती हैं, right? So जैसे magazine में आपको बता दूँ, प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ सकते हैं. और अगर आप और ज़्यादा, वैसे आई गेस उसके लिए एनडीए के लिए इनफ है. सीडीएस का जो लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर होता है एनडीए से, उसके लिए ज़रूरी आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं इसके लिए. और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एसएसबी क्लियर करना है, फाइनली इफ़ यू वांट टू बी इन एनडीए, देन सबसे ज़रूरी चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग. न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट अभी से इनकलकेट कर लीजिए, प्लीज़. आई एम रिक्वेस्टिंग यू. इसके बिना यार, यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यार आपको पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है यार. तो उसके लिए वैसे भी इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, ये सब बहुत ज़रूरी है यार इन योर डेली लाइफ. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो यार, मैं तो मानता हूँ जो आदमी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा वो मरा हुआ, उसका दिमाग बिल्कुल खत्म है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट सबको इनकलकेट करनी चाहिए. बिकॉज यू शैल नो यार व्हाट इज हैपनिंग इन योर नेशन. यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दुनिया में क्या हो रहा है आपको ये नहीं पता है कि आप हरियाणा में हो, यूपी में क्या चल रहा है, कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं यार, यूक्रेन रशिया के बीच में क्या क्राइसिस चल रहा है, आपको ये नहीं पता यार क्या जिंदा हो फिर. आपको ये नहीं पता आपके अराउंड हो क्या रहा है, क्या चीज़ें आप अफेक्ट कर रही हैं हमारी कंट्री को. ओके, सो न्यूज़पेपर रीडिंग एंड करंट अफेयर्स मैगजीन.
एंड वन मोर थिंग, मिसलेनियस भी यहाँ से आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। कैसे? सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ लीजिए जो पिछले 6-7 महीने में न्यूज़ में रहे हैं, राइट? तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उन ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली, राइट? तो ये था आपका सिलेबस, ये चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। नाउ some misconceptions about this exam, or I would say the problems students generally face during the preparation of this exam, I found out, so I will deal with them now and I will clear all your doubts regarding that, right? So basically मैंने देखा यार, जो 12th के बच्चे होते हैं वो जनरली स्ट्रीम वाले बच्चों को ना, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम का हूँ, मैं आर्ट्स स्ट्रीम का हूँ, तो ये सोच के काफ़ी बच्चे प्रिपेयर नहीं करते हैं कि यार मैं इस स्ट्रीम से हूँ, जीएस में और जो जीएस वाला पोर्शन है 400 नंबर का, उसमें तो यार जीके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मुझे तो जीके आती नहीं है इतनी, मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के होते हैं, उन्होंने मैथ्स नहीं ऑप्ट किया होता 11th क्लास में। वो ये सोचते हैं यार 300 नंबर का मैथ्स 11th-12th से मेजर पोर्शन आ रहा है, तो यार ये एग्ज़ाम हमारे लिए नहीं बना है। बेसिक जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की वो यही होती है, मैंने देखा है जनरली। सो यार देखो, उसके लिए एक बहुत ही आसान सा लॉजिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ ह्यूमैनिटीज़ वाला बच्चा जिसने मतलब 11th में मैथमेटिक्स ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है? तो ये 300 नंबर पे लग गया उसकी क्वेश्चन मार्क कि यार इसका क्या करना है। चलो उसको छोड़ो पहले, ये जो 600 नंबर वाला क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले इंग्लिश, तो यार 10th तक तो इंग्लिश पढ़ी होगी, ग्रामर पढ़ी होगी, ठीक है? नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो, तैयारी कर लो। ग्रामर ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं आपसे। यहाँ पे आप क्या करो, ग्रामर पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो इसकी, और ट्राई करो यहाँ पे एटलीस्ट 140 to 150 स्कोर करने की। एंड ट्रस्ट मी इट इज़ अचीवेबल। 200 में से 140-50 नंबर आते हैं अंग्रेजी में और इजीली आते हैं, ठीक है? सो हियर टारगेट फॉर 140 to 150 मार्क्स, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज humanities students who have not opted mathematics at 10+2 level, right? Okay, so here try to score 140-50 marks and I'm telling you that is achievable, very easily achievable. अब आ जाते हैं जीएस वाले पोर्शन पे। जनरल साइंस 10th तक पढ़ी है आपने, सब पढ़ते हैं 10th तक, और आपने ह्यूमैनिटीज़ भी ऑप्ट कर रखी है, लेकिन 10वीं तक तो साइंस पढ़ी होगी। अगर आप ठीक ठाक आपने एवरेज भी हो अगर, तो ये एवरेज क्वेश्चन ही पूछते हैं, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछते जनरल साइंस से। और अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं तो यू कैन ईजिली सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब ये जो पोर्शन होता है जनरल साइंस का, जीएस वाले पोर्शन में सबसे ईजी होता है, वन ऑफ द ईजिएस्ट पोर्शन, राइट? इट इज़ द ईजिएस्ट पोर्शन। एक और पोर्शन होता है काफ़ी ईजी होता है, उसके बारे में बात करूँगा मैं। हिस्ट्री, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो तो आपको आनी चाहिए, आई एक्सपेक्ट it out of you, right? Then okay, then geography portion, humanities वाले बच्चे अगर geography लिया है तो definitely it would be easy for you. Polity, most questions, सबसे ज़्यादा questions होते हैं पेपर में polity से related, और trust me easiest, ये दोनों जीएस के पोर्शन में सबसे इजी होते हैं, इनके क्वेश्चंस टैकल करना। सबसे मेजर पोर्शन इन दोनों का ही होता है, जनरल साइंस का और पॉलिटी का, और सबसे आसान होते हैं ये टैकल करने, ट्रस्ट मी। तो अगर आप यही दोनों पोर्शंस, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे तो कि इसमें फुल मार्क्स और इसमें फुल मार्क्स, पॉलिटी में भी ये करते हैं बच्चे यहाँ पे। और अगर आपने ये कर दिया तो चलो बताऊंगा, लेकिन आपका एग्जाम 90% निकल गया अगर आप यहाँ ये दोनों क्वेश्चंस आपने इजीली टैकल कर लिए तो, राइट? और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस क्वेश्चन में से। सेम 11th-12th, इफ़ यू आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स पूछते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है, सब चीज़ों से रिलेटेड, एंड करंट अफेयर्स और मिसलेनियस मैंने आपको बताई है, राइट? सो जो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है इजीली 140-50 नंबर यहाँ ले आए, और 150 से 180 नंबर यहाँ ले आया,
राइट। ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा आई एक्सपेक्ट यार 150 से 180 नंबर आराम से ले आ सकता है यहाँ पे, जो ह्यूमैनिटीज का बच्चा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, 150 से 180 नंबर यहाँ पे। देन अब सबसे जो मेन डाउट बच गया वो मैथमेटिक्स का था, यार मैथमेटिक्स मैंने ऑप्ट नहीं कर रखी है, सो इसका क्या करें यार। तो देखो यार 150, चलो ये ले लेते हैं, हाँ 150 या फिर 140 ले लो, चलो यहाँ पे आपके 140 आए इंग्लिश में और 180 आ गए आपके यहाँ पे, राइट। सो इफ यू ऐड देम ऑन 320 हो गए आपके, 320 ये हो गया आपके, राइट। बच गया ये क्वेश्चन। सो बेसिकली यूपीएससी का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 20% स्कोर करने ही पड़ेंगे, राइट। अगर मान लो यहाँ पे आपने 600 में से 600 मार दिए, वी आर टेकिंग ए केस, हाइपोथेटिकल केस कि आपने यहाँ 600 में से 600 स्कोर कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपके 20% से कम स्कोर है, तो आप बेशक कट ऑफ से ऊपर हैं, जो कट ऑफ रिलीज करेगी यूपीएससी, लेकिन आपके इसमें अगर 20% नहीं है मैथमेटिक्स में, यू विल फेल द एग्जाम, राइट। सो ओनली टारगेट इज, जो बच्चे जिन्होंने मैथ्स चूज नहीं कर रखा है एज देयर सब्जेक्ट, सो ओनली टारगेट इज टू स्कोर 20% मार्क्स इन द एग्जाम, इन द मैथमेटिक्स एग्जाम आई मीन, राइट। यानी कि 300 का 20% कितना होगा भाई, 60 मार्क्स आई गेस, या 60। तो आपको 300 में से सिर्फ 60 नंबर लाने हैं, राइट। 300 में से 60 नंबर लेना यार कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने 10th तक मैथमेटिक्स पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको और भी ज़्यादा दिक्कत है तो यार आजकल तो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं सारी चीज़ों की, और आपके आसपास कोई कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सही बात है, आपके पास कोचिंग सेंटर है तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो यार, मैथमेटिक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो, आपका 100 नंबर का जुगाड़ आराम से हो जाएगा, क्योंकि वो आपको शॉर्टकट्स वगैरह सिखा देते हैं कोचिंग पे, सो देन इट इज़ रियली इजी फॉर यू। तो 100 नंबर यहाँ पे लाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, राइट। आप ये लग रहा हो नहीं यार मेरे तो 100 भी मुश्किल है, तो 80 तो यार कोई भी आराम से ले आ सकता है, राइट। 80 नंबर ही ले आओ इसमें। तो आपका अगर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे 80 नंबर ले आओ, यहाँ पे 320 आप स्कोर कर दो, राइट। हो गए 400 नंबर, कोई नहीं रोक सकता आपका एग्जाम क्वालिफाई करने से, क्वालिफाई, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, राइट। सो आई होप डाउट इज क्लियर कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है देन ऑल्सो इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम, राइट। चलिए अब केस लेते हैं हम साइंस वाले बच्चे का। यार साइंस वाला बच्चा है, उसने कभी पढ़ी ही नहीं है ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ता, मिसलेनियस भी नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ा उसने सिर्फ जनरल साइंस पढ़ी है, राइट। सो वो कैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करें। तो यार मैथमेटिक्स अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, राइट। सो यहाँ 300 में से आप इजीली 150 स्कोर कर सकते हो, इजीली, वेरी इजी, राइट। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन उनसे काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रस्ट मी, राइट। तो बस थोड़ा सा क्या है, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग लगा के सॉल्व होंगे ये क्वेश्चंस, राइट, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। तो 300 में से 150 मेरा 50% तो आई एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू कि आप 50% तो स्कोर कर ही सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू आर फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। तो 150 नंबर आपके यहाँ पे हो गए, यहाँ पे सेम, इसमें कोई नहीं है, 140-50 नंबर यहाँ पे ले आओ, राइट। 140-50 नंबर यहाँ पे आ गए आपके, बचा क्या, जनरल साइंस में 50-60 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जनरल साइंस का इतने वेटेज होता है कि आप यहाँ पे इजीली 50-60 नंबर यहाँ पे ले आए, बाकी सारे पोर्शंस में लगभग आप 30-40 नंबर भी ले आओ, मतलब 400 में से सिर्फ 100 नंबर ले आओ यार, राइट। 400 में से 100 नंबर ले आओ सिर्फ, और जनरल साइंस के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, 60-70 नंबर यहाँ पे आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। पॉलिटी, हाँ पॉलिटी बहुत ही ईजी होती है इस एग्जाम की, तो पॉलिटी को टारगेट करो, राइट। पॉलिटी का सिलेबस सिर्फ 10-15 दिन का है, 10-15 दिन में आपकी पॉलिटी ऐसी हो जाएगी कि आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करके आओगे यहाँ पे, राइट। 10 days आर मैक्सिमम, राइट, सिर्फ 10 दिन चाहिए पॉलिटी कवर करने के लिए इस एग्जाम की, और अगर आपने एक बार कर ली तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सही अटेम्प्ट करके आओगे। तो 100 नंबर आप यहाँ पे ले आओ, 150, 300, 100, 400, ओके।
qualified. राइट सो ये भूल जाओ यार कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड यू कैन इजीली क्वालिफाई द एग्जाम. राइट सो आई थिंक यू आर अनेबल टू क्लियर योर डाउट्स ऑल्सो कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, कैसे, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, कब कब होता है, क्वालिफिकेशंस क्या है. और आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स. And definitely if you have some other doubts you can comment in the comment section, and I will be obliged to clear all your doubts. Thank you, ladies and gentlemen. Have a nice day.